Dear students, it's a welcome back to your own channel, Mr. Amit Sir Official. And in this reference, as we are going to just reflect some points on the article series. So now we just move to it. प्यारे बच्चों, सभी का एक बार फिर से आपके अमित सर ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। और आर्टिकल की सीरीज में हम फिर से एक बार बढ़ रहे हैं। एंड इट इज़ अ वेरी एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एज फार एज आई थिंक एज एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, परीक्षा की दृष्टि अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स में एक और सबमिट हो रहा है जो बर्निंग है और ट्रेंड्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और इसका प्रभाव। एज वी नो टुडे वी आर गोइंग टू utilize an important software which is called artificial intelligence. It is an advancement of computer education and technology that we are going to use it. AI or artificial intelligence has a new approach as far as today's life. It has been used in various fields of life, as far as to set up a new infrastructure, showing some blueprints or some map which is very important or modified one, as far as we think is used in project work. And now today we see that we find AI or meta AI through which we are using it to create videos, to create a kind of information about anything. So artificial intelligence has a dominance over maximum perspective in our life. Artificial intelligence has also been used as far as education is concerned, and it is a preparation by our great men or great scholars to form a question paper as well as news as well as project work, lesson plans or other things. In factories, it has been used to build a new technique through robotic device to use it. Not only in this area but also in the field of medicine, it has been seen a new approach for the precise treatment during the surgery through robotic device. So it is really a miracle, a kind of surprising for all of us in such application in our life. And artificial intelligence has also made our lifestyle a completely changed one. On the one hand, we find it easier to do a kind of work in any project or wherever we use in daily life. On the other hand, we have to also think about it that too much dependency on technology also can make a wrong impact all of us, as we are getting too much lazy that we have the fear to lose our creative genius, our creativity. So that's why artificial intelligence can be a very moving, a very dynamic, a very precise, and as far as the modified one, but it has the complications and we have to also be careful while using this. So artificial intelligence really a very helpful approach in our life.
तो इस आर्टिकल को आप नोटेट करेंगे और इसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ये आज आपके उस जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिस पे चर्चा की गई है। सरल से सरल शब्दों में लाने की कोशिश की गई है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखे गए हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। एंड वी हैव सम पॉइंट्स आल्सो रिलेटेड टू द ग्रामर सेक्शन। ट्रांसलेशन के दौरान जब आपको बड़े बड़े ट्रांसलेशन करने होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के बारे में आप विशेष ध्यान रखें। जैसे तालाब का पानी गंदा है, ऐसी स्थिति में आप ऐसा प्रयोग न करें वाटर ऑफ द पॉन्ड, बल्कि आप ऐसे प्रयोग करेंगे वाटर इन द पॉन्ड। और दूसरी चीज़, जिसे कहा जाए भारत के लोग, तो कोशिश ये करें कि इसका यूज कदाप न करें द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल इन इंडिया। जिसे कहा जाए कि भारत के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, तो द पीपल इन इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग, इस प्रकार से यूज करना। और तमाम ऐसे पर्सपेक्टिव आएंगे जहाँ पर आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में दिक्कतें होंगी, उस पर विशेष आपको ध्यान देना है। तमाम ट्रांसलेशन ऐसे हैं जो आपको डिग्री के माध्यम से मिलेंगे। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जैसे देखा जाए कि देहरादून की जलवायु इलाहाबाद की जलवायु से अधिक ठंडी है, तो आपको जलवायु किधर ले जाना है जिसमें पहले की चर्चा हो रही है। तो जैसे द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कूलर देन दैट ऑफ इलाहाबाद। सीधे डायरेक्ट ही नहीं कर देना कि दैन इलाहाबाद, क्योंकि जिसकी तुलना हम कर रहे हैं वो शहर की नहीं है बल्कि अपित जो है जलवायु की है। तो जलवायु में दो पक्ष हम रखते हैं, अगर पहले वाला है तो उसको यह करते हैं और दूसरे को वह करते हैं, यानी इलाहाबाद वाली की अपेक्षा। और अगर कहा जाए कि कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक, तो हमको अनुवाद इस प्रकार से ही नहीं बनाना है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बल्कि इसको कैसे बनाना है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। और परिप्रेक्ष्य में जाए कि ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत या सबसे सुंदर इमारत है, तो मान लीजिए वैसे तो आता है कि दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक है। तो अगर आ भी गया इस ट्रांजेक्शन इस प्रकार से, तो या यूँ कह लीजिए इस प्रकार से आ जाए कि भारत में या ताजमहल भारत की सबसे सुंदर इमारत है, तो इसका ट्रांजेक्शन हमें इस प्रकार से नहीं करना है कि द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, बल्कि उसको कैसे करना है द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो ऐसे बहुत ही ट्रांसलेशंस हैं जिनमें हमें प्रीपोजिशंस पर नोटिस करना है और फिर उसके बाद बनाना है, ताकि जो शुद्धता है वो ट्रांसलेशन की अधिक से अधिक रहे और हमारे जो अंक हैं वो सुरक्षित हों। आर्टिकल्स में ध्यान देने योग्य बातें ये है कि हमें आर्टिकल का इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद में हमें उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके यूज़ पर, अगर कोई डिवाइस है तो उसके यूज़ पे जाना है, और फिर उसके बाद में किस हद तक उसका इम्पैक्ट है, उसके बाद में उस इम्पैक्ट को देखते हुए कंक्लूजन पे हमें जाना है। ये भी हमें उसमें देना है कि किस हद तक इसका यूज़ किया जाना चाहिए और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपका अगर एक ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा तो इससे आपको बेहतर रिस्पांस प्राप्त हो सकते हैं। तो अब अगले अंक में कोशिश फिर से की जाएगी और फिर अगले आर्टिकल पर नोटिस किया जाएगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोग मेहनत करेंगे और अच्छे अंक स्कोर करेंगे, यही मेरी शुभकामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।